Saina Nehwal, India's pride, a trailblazing badminton player. डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बस अब इसके बाद नहीं खेलो। मुझसे पहले कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कंसिस्टेंटली हाईएस्ट लेवल पे इतना परफॉर्म कर रहा था। परिणीति ने आपको अनफॉलो कर दिया। शायद उनको लगा कि काम करूं और काम हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट मूवी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे ध्यान दे देंगे। आई डोंट केयर फॉलो करो या अनफॉलो करो। अगर एक और जी सर। बायोपिक बनाई जाए तो आप किस एक्ट्रेस को चाहेंगी आपका कैरेक्टर प्ले करने? श्रद्धा कपूर विल बी वेरी गुड, और अदरवाइज दीपिका। ऐसे कहा जा रहा था कि साइना नेहवाल ने गोपीचंद के साथ कोचिंग बंद किया क्योंकि वो पीवी सिंधु की तरफ ध्यान ज्यादा देने लगे थे। कोई स्टेज यस, पे आके आपने गोपीचंद ट्रेनर को छोड़ दिया। माई रैंकिंग ना 2013-14 में वर्ल्ड नंबर 2 से वर्ल्ड नंबर 9 पे चली गई। एज ए प्लेयर यू हैव टू बी सेल्फिश। हम अपने कंट्री में बिलीव करते हैं कि एक कोच को रखना चाहिए, उन्होंने तो बनाया आपको। सो आई वेंट टू बैंगलोर, आई आस्क्ड विमल सर, आप मेरी मदद कर सकते हैं? देन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। आई एम ए वेजिटेरियन। जो कोच का डिसीजन था, उन्होंने बोला थोड़ा बहुत आपको नॉनवेज लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आई हैड टू स्टार्ट ईटिंग दैट। आपकी ग्रैनी चाहती थी कि लड़का हो और खफा थी, और आपने जो आज प्राप्त किया है बीइंग अ गर्ल, डिड यू टेल योर ग्रैनी? डिड शी रियलाइज? डिड शी टेल यू सॉरी? डिड शी कम बैक टू यू? आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है और आपने उनके साथ यस, भी है यस, यस, हैदराबाद में खेला जब है उन्होंने। कौन जीता? वी वेंट टू हिज वैनिटी वैन। उन्होंने खुद ही 1-2 आवर्स दिए, हमें अपना स्ट्रगल सुनाया। इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। जब हम जा भी रहे थे तो ही एक्चुअली केम टिल दी कार डोर एंड ही ओपन द डोर। Amitabh sir also invited me to his house, had such lovely food. He was asking me, how did you get interest in this? How did you become so strong and confident about achieving so much? My favorite sports person is Roger Federer. I just love him. Are you in touch with him? 2010 Commonwealth Games in Delhi. That was a special one. In the finals, I was down match point 19 in the second set. The Malaysian was match point up. That 2019th point just fell on the line. उस टाइम पे रिव्यू सिस्टम भी नहीं था, बट अंपायर ने राइट दिया. She was actually celebrating. That is your Yes. sweetest victory. Which is your most bitter defeat? What if Prime Minister Narendra Modi asks you to contest an election for BJP? We have with us Olympic and World Championships medalist Saina Nehwal, India's pride, a trailblazing badminton player. And thank you so much for doing this interview with me, Saina. Thank you. Thank you so much, Vicky. I've watched a lot of your shows and I am very happy. I start off with the most pertinent question and the topical Yes. one. That Yes. What made Saina Nehwal retire? What made me retire is the arthritis of the right knee, degeneration of the cartilage, which usually happens when you play over the years. It's not something which I obviously, no one, as a player, you will not like it. You know, it's something which is irritating because the knee goes into a lot of trauma when you play at the highest level. It is, you are putting 3 times your body weight. So suddenly, if something like this happens and you can't even push for 2 hours, and you have been in top 10 for almost 12 years, I think it didn't make any sense to continue like this. Knee pe swelling aa ja raha tha bari bari, so it was not my knee was not very happy. You know, I had to go to doctor again and again to get the swelling out of the knee. तो वो चल नहीं रहा था अच्छा, वो फ्लूइड बहुत निकाल रहे थे, लेकिन फिर से आ जा रहा था. तो it was not very happy decision. You know, obviously it's very emotional when you are with some sport for so many years and you, it's like a job for you. You love it so much, and to finally say bye to it is obviously very emotional. But I think I gave it all and I tried my best. And even in the last stage also, I tried my best to help my knee, but it didn't work, and I had to, you know, just give it up. ये आप 1-2 साल से सोच रहे थे, if I'm not wrong. Yes, I was thinking from 1-2 years. I was trying from 1-2 years. I tried because as a top player, you don't want to leave the sport so fast. And as you must have seen, Roger Federer also tried for an year after, you know, all the issues what he faced, and after 1 year he gave up the sport. So we, as a top player, we try, and if it is not working, then I think it's time that you just leave it. तो साइना, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बस अब इसके बाद नहीं खेलो।
Yes, it was very tough. There's no way you can go for any surgery for this. Your knee is not broken. It just over the years of degeneration. So even if he would have done the surgery, he said it is not going to work. The swelling will come back again. And then I had to think about it. It's a sad decision, but he was like, that is how it is. You are not a machine. You're finally a human being. You have to think about your long term this thing also, because your body might become you have to really work on your body for the later years as well. So every day now when I go for motivational talks or any events, I have to keep doing a lot of conditioning exercise, lot of exercise for my knee, because for walking or climbing up down the stairs or walking anywhere, the knee goes into a lot of stress. And obviously the shoulder, back, everything, we have pushed to our limits for 25 years. So everything we have to keep working on. But doctor was like, no way you can get this sorted. So it was tough for me. I For being at the top level, I had to train for almost 8 to 9 hours, but it was not happening every day. पेरेंट्स और हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? कुछ था ऐसा कि नहीं और ट्राई करो, क्योंकि एक होता है फैमिली में। I think all of them were a little bit, not little bit, they knew about it, what is going on. They knew I was struggling. They knew it was not very good. Finally, they were like, just listen to your body, because we have seen you work so hard for so many years. Of course, for them also, it was a little tough to understand. And, I'm sure it must have been very difficult for them to also believe that this day will come. But, it has to come for all the players, and I believed that I gave it all. So that was the thing which I thought in the last few days when I was giving up. It was like I gave it all. I tried everything, and husband and my parents, everyone were like, it's your decision. Finally, you have given your best, and we all are with you in this decision. ये डिसीजन जब आपने लिया, तो उसके बाद फीडबैक क्या आया आपके फैंस का? दे मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मुझसे ज्यादा आई थिंक उनको ही शौक होगा, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा मेरे को इतने ज्यादा साल से देख रहे थे, एंड दे वर लाइक सो अटैच टू माय गेम, बिकॉज मेरा गेम हमेशा एक ड्रामा ड्रामा की तरह होता था, हमेशा टफ मैचेस होते थे, एंड दे टू रियली एंजॉय माय मैचेस। आई एम श्योर वो भी डिसअपॉइंट हुए होंगे, बट दे ऑल्सो, आई एम प्रेटी श्योर दे आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। एंड फाइनली एक्सेप्ट तो करना पड़ता है, एंड आई एम श्योर दे हैव एक्सेप्टेड इट नाउ। बट yes, it's a decision which nobody likes, as a player, as a fan, as a parent. I think everyone is not happy to retire from a sport which has given you so much. But जब मैंने फॉर्मर प्लेयर से भी बात करी थी स्पोर्ट में, many of them have stopped playing because of these issues. तो it's normal. मान लो ये अगर इंजरी नहीं होती, आप कितने साल और खेल सकती थी? आपने खुद से बात तो की होगी ये। मुझे लगता है 36 37 तक तो काफी प्लेयर्स खेल ही लेते हैं एट अ गुड लेवल। उसके बाद ऑब्वियसली नॉट ओनली इंजरीज, बट स्टेमिना भी काउंट करता है, स्ट्रेंथ भी काउंट करती है। तो यंगर प्लेयर्स आ जाते हैं और फास्ट होते हैं वो प्लेयर्स, यंगर प्लेयर्स। तो काफी हद तक आपको चेक करना होता है, इम्प्रूवमेंट काफी चीजों पे करना पड़ता है। तो मे बी अनदर 3 4 years तो आराम से खेल सकते थे, एंड देन यू डोंट नो कि स्कोरिंग सिस्टम माइट चेंज, एंड इट माइट बिकम टू लिटिल लेसर पॉइंट्स एज वेल। तो उसमें शायद स्टेमिना की इतनी जरूरत ना पड़े, एंड देन और भी पुश कर सकते थे, मे बी टिल 39 40, यू नेवर नो। लेकिन आई थिंक मेरा ट्रेनर का भी जो टाइमिंग था, ट्रेनर फिजियो का भी, वो भी मेरे जो करियर में था काफी लेट आया। व्हेन आई वाज 19 आई गॉट फर्स्ट फिजियो एंड ट्रेनर। तो उतने तक तो मैंने ऑलरेडी ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल भी लिया था। लेकिन हम जिस टाइम पे मैंने खेलना शुरू किया, गेम वाज नॉट दैट प्रोफेशनल। हमें पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए कितना, मतलब कैसे चीजें लगती हैं। और बॉडी कि इम्पैक्ट क्या होता है? वो होता है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत बर्नआउट कर लिया था, आई थिंक फ्रॉम 9 to 19 years, एंड देन गेटिंग अ फिजियो ट्रेनर, ऑब्वियसली इट हेल्प मी अ बिट। बट जो अगर बच्चों को 9 और 10 years में मिल जाए अच्छा ट्रेनर और फिजियो, देन आई थिंक यू कैन प्ले फॉर लॉन्गर टाइम एज वेल। आपने गोपीचंद से काफी ट्रेनिंग ली, या तो आप गोपीचंद के पास गए कैसे? मतलब क्या किसी ने रिकमेंड किया या आप इंस्पायर हुए टू गो फॉर हिम? फॉर व्हाट रीजन? I think he was training in Hyderabad only. He was a very senior player. He
in fact won the All England Championships, and then his knee also started paining after that, and he took the retirement in 2003, and then he wanted to become a coach, and we all were training in Hyderabad. So he was like, I would like to train all the youngsters now. So luckily for us, he was there in Hyderabad only, and he started coaching in Lal Bahadur Stadium. And our group was very blessed. I think we got such a big player at that point of time when we were very very young, and that's why I think this group of ours could achieve so much. मतलब जो मैं हूँ, सिंधु है, श्रीकांत है, प्रणय है, सात्विक चिराग, all of us could achieve at that level because of him. He was giving us advice at the right time, क्या खाना चाहिए, कितना ट्रेनिंग करना चाहिए, और कितना रिकवरी रेस्ट चाहिए at the highest level, and all these things really mattered a lot to play at the highest level in internationally. And उसके बाद उनका कोचिंग जर्नी शुरू हो गया, और then he slowly opened up his own academy in Hyderabad. And then there were a lot of more players who came in and joined us. But I think initially it was only few of us whom he helped from Hyderabad. But later on, the academy became very big and huge, and the results also started coming in very early for me. By the time I was 15, 16, I was already winning the Philippines Open. I was defeating the world number 8 and world number 9. Yeah, मैं काफी top players को हराने लग गई थी. And then I played the first Olympics at the age of 18 in Beijing. तो काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आने लगी, बहुत मोटिवेशन मिलने लगा, एंड समथिंग वाज गोइंग रियली राइट. सो आई डिडंट हैव, मतलब पूरे 25 साल में आई डोंट थिंक आई हैड एनी टाइम टू सिट एंड थिंक कि क्या क्या कर रही हूँ मैं. एवरीथिंग वाज जस्ट फॉलोइंग सो राइट in whatever way I wanted or the coach wanted or my mom. All of us were very very happy, and pushing each other to the limits that Saina can really achieve at the highest level, and she should just believe it, क्योंकि मुझसे पहले कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कंसिस्टेंटली हाईएस्ट लेवल पे इतना परफॉर्म कर रहा था, या आई कुड से दैट ओलंपिक मेडल पॉसिबल है या वर्ल्ड चैंपियन बनना पॉसिबल है. इट वाज नथिंग लाइक दैट. Only my mom, who's a housewife, was thinking something big for me. She was like, इसको ओलंपिक चैंपियन बनाना है या वर्ल्ड चैंपियन बनाना है. सो आई वाज लाइक, हाउ कम. आज बैठ के मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है बहुत ही वियर्ड है, जहाँ जिस स्पोर्ट में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि बैक टू बैक रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ. देयर शी थॉट के साइना कैन डू समथिंग एंड गेट समथिंग बिग फॉर द कंट्री. So, I mean, hats off to her manifestation and her strength. She was very, very strong, and she made me also very strong to believe that कि Chinese, Koreans ये सब कोई machines नहीं है. They are also human beings. अच्छा खाओ और अच्छी ट्रेनिंग करो, and I think that really helped me to defeat most of the top players. तो मम्मी और कोच के डूज एंड डोंट्स क्या थे खाने में? A lot of restrictions, and slowly initially तो आप अच्छा digest कर लेते हैं. When you're 9, 10, 11, 12, आप digestion अच्छा होता है, you are working out very well, and then slowly you understand कि I am a vegetarian. तो vegetarian खाना पूरे बाहर जाने जब आप इंटरनेशनली टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो आपको वो वेजिटेरियन खाना इतना मिलता नहीं है, अच्छी तरह से प्रोटीन नहीं मिल पाता है. सो आई थिंक जो कोच का डिसीजन था, उन्होंने बोला थोड़ा बहुत आपको नॉनवेज लेना पड़ेगा टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, एंड नहीं तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी जगह जहाँ जहाँ पे वो अच्छा खाना मिले, एंड इट इज़ वेरी टफ व्हेन यू आर प्लेइंग सो मेनी मैचेस. तो अब जाके ढूंढने में ही 1-2 घंटा हो जाएगा, या उसके बिना आई थिंक अनलेस यू आर नॉट रिकवर्ड वेल या यू आर नॉट ट्रेनिंग वेल, तो फिर ये सब चीज़ें मैटर कम ही करेंगी. तो ही मैच सेड पर के असर पड़ेगा. मैच पे असर पड़ेगा. तो ही जस्ट सेड कि ईट राइट, थोड़ा खाना सीख लो नॉन वेज. एंड आई वाज लाइक, नहीं सर, बट धीरे धीरे आई हैड टू स्टार्ट ईटिंग दैट. एंड उसके बाद ही टोल्ड अस दैट यू डोंट हैव टू किल योरसेल्फ ऑन कोर्ट. ट्रेन राइट, ट्रेन विद गुड क्वालिटी, दैट इज रिक्वायर्ड. तो हम 9, 10, 11 घंटे पुश करते रहते थे अपने आप को, एंड देन ही केम इन एंड ही वाज लाइक 6-7 hours of good training, and right training is required to play at the highest level. तो ये सब सारी चीज़ें फिर ऑब्वियसली बॉडी फैट परसेंटेज का भी काफ़ी हद तक उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू बी इन सर्टेन दिस थिंग सो दैट यू कैन मूव फास्टर, मूव फ्रीली, क्योंकि कोर्ट में बहुत फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, यू हैव टू बी वेरी अजाइल. सो ये सब चीज़ें चेंज करने के बाद जो रिजल्ट्स आए, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी क्विक एंड वेरी, मे बी आई वाज लिटिल ब्लेस्ड दैट आई वाज अ गुड रिट्रीवर. आई हैड अ पावरफुल स्मैश, लेकिन मुझे मेरे स्ट्रोक्स पे वर्क करना पड़ता था बारी बारी. तो वो चीज़ हमेशा मुझे याद रहती थी कि इवन इफ आई टेक 2-3 days ऑफ ब्रेक,
दैट इज इक्वल टू 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग गॉन। तो आई थिंक मेरा बॉडी भी ऐसा था कि मैं वेट पुट ऑन वेरी बहुत जल्दी करती थी। तो उसके लिए एवरी डे आई यूज्ड टू बी केयरफुल के एक एक दिन का ब्रेक या एक एक दिन का मतलब कुछ भी ऐसा इश्यू हुआ कि सपोज आज हैवी खाना खा लिया या थोड़ा पेन हो गया, तो दैट मीन्स नेक्स्ट डे यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेन वेल, इट्स गोइंग टू बी वेरी हैवी। एंड कोच नोटिस कर लेता है, एंड देन द कोच इज लाइक आज ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, कम नेक्स्ट डे। सो पनिशमेंट के लिए भी दे वर रेडी के ऐसा नहीं हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सेशन एवरी डे। इवन ऑन संडेज आई यूज्ड टू किल माई सेल्फ, 8 9 10 घंटे की ट्रेनिंग करती रहती थी। आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट लाइक एनीथिंग, मुझे कंपटीशन का, मुझे ट्रेनिंग करने का, मुझे स्पोर्ट्स खेलने का बहुत मन करता था। और जितना भी मुझे मेहनत करने के लिए बोलते थे, इट वाज लाइक बस मुझे पसंद था कि जितने टाइम भी कोर्ट पे मैं रहूं, मैं बहुत एंजॉय करती थी। तो खाने का चेंज, फिर ट्रेनिंग का चेंज, फिर लॉट ऑफ फोकस ऑन मेरा फैट परसेंटेज नीचे लाने के लिए एंड स्ट्रोक्स पे वर्क करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स रियली वर्कड वेरी वेल एंड रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग इन 1 2 years। एंड बाय द टाइम 18 19 में तो हमारे फिजियो भी आ गए थे, तो उसके बाद लॉट ऑफ सुपर सीरीज विंस एज वेल, बिकॉज द फिजियो टोल्ड मी व्हाट ऑल टू वर्क ऑन मेरे बॉडी पे। क्योंकि अब क्या था, एज यू आर एजिंग यू विल हैव इंजरीज कमिंग अप। थोड़ी इंजरीज शोल्डर पे हो गई थी, थोड़ा बैक पे हो गई थी। तो फिजियो ट्रेनर ने फिर बोला कि आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है ताकि आप और बेटर खेल सके। तो आई थिंक प्लेयर के लिए ट्रेनर और फिजियो बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से कोर्ट पे खेल सके। एंड ऑल्सो मेंटल ट्रेनर नाउ डेज, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज वेन यू हैव 17 tournaments in a year and you have the pressure of your coach, of your, this I'm talking about the top 10 level, when you're winning back to back, the प्रेशर ऑफ द अदर अपोनेंट्स ट्रेनिंग बेटर देन यू। आप सोचेंगे कि आज आप अपने मनपसंद खाना खा लें, बट वो अपोनेंट तो नहीं खा रहा है, शी इज वर्किंग ऑन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। कहीं कहीं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए वो 19 20 का फर्क हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू रियली हैव टू टेक केयर, एंड 24/7 आपको मैच के बारे में सोचना पड़ता है, ट्रेनिंग के बारे में सोचना पड़ता है। 17 टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं साल के लिए। ओलंपिक्स में टॉप 16 ऑफ द वर्ल्ड में होना पड़ता है, या कोई भी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक प्लेयर को प्रेशर में डालता ही है। तो नॉनवेज आपको आदत हो गई, अच्छा लगने लगा, और अभी आप खाते हैं? खेलने के बाद मैंने छोड़ दिया सर, मुझे उतना ऐसा कुछ उसका वो हुआ नहीं था कि मुझे खाना ही है। खेलने के बाद ऐसा कुछ लाइकिंग ज्यादा बनी नहीं, बट आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर माय जॉब। कोई यस। स्टेज पे आके आपने गोपीचंद ट्रेनर को छोड़ दिया, एक और स्टेज पे, यस। ऐसा क्यों हुआ? Because I was playing really well, I got the Olympic medal, but my ranking ना 2013 14 में वर्ल्ड नंबर 2 से वर्ल्ड नंबर 9 पे चली गई। और मुझे लगने लगा कि उस टाइम पे ये 1 to 1 कोच का भी नहीं आया था। उस टाइम पे वी वर जस्ट प्लेइंग ट्रेनिंग अंडर गोपी सर, 30 40 ऑफ अस, एंड वी वर ट्रेनिंग द सेम थिंग जो सब कर रहे हैं वो भी मैं ही कर रही थी। तो मुझे लगा शायद मेरा गेम इस ट्रेनिंग से इम्प्रूव नहीं हो रहा था, एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम एज वेल कि अब मैंने 6 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में क्वार्टर फाइनल्स में हार गई मैं। एंड आई एम सेइंग सर मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं है, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग टू वर्ल्ड नंबर 1। एंड गुड दैट आई गॉट द ओलंपिक मेडल, लेकिन आई कांट जस्ट सिट एंड सी माई सेल्फ स्ट्रगलिंग विद दीज चाइनीज, एंड इन टॉप 10 देर आर 8 चाइनीज प्लेयर्स, और मैं और एक लड़की डेनमार्क से है जो उनको फाइट दे रही है। एंड नाउ द चाइनीज आर डिफीटिंग अस अगेन एंड अगेन, एंड दे नॉट गिविंग मी एनी चांस टू go through the quarterfinals or the semifinals. So I was talking to him. He was also telling me कि patience रखो, आ जाएगा. But sometimes when you're playing at that level, ना patience तो obviously होता ही है, लेकिन you lose that फीलिंग कि क्या मुझे वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा टू डिफीट देम, वो हो रहा था। मेरे को कहीं लग रहा था कि दीज चाइनीज आर रियली डोमिनेटिंग अगेन, एंड दे आर डिफीटिंग अस लाइक इन स्ट्रेट सेट्स, या कुछ टफ भी नहीं हो रहा है अभी मैच। तो आई जस्ट टोल्ड हिम सर आई थिंक आई नीड चेंज ऑफ प्लेस, मे बी आई नीड चेंज ऑफ मे बी अ कोच वेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे मेरे गेम को कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, या कुछ मैं अपने आप से इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ही वॉज ऑब्वियसली एज ए, बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइक 10 12 years, सडनली इफ आई से समथिंग लाइक दैट, ऑब्वियसली एज ए कोच ही विल फील के ये क्या हो रहा है। बट एज ए प्लेयर यू हैव टू बी सेल्फिश, जैसे आप टेनिस में देखते हैं, एवरी मंथ दे कीप चेंजिंग देयर कोच बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉर्मल, बट हम अपने
आई थिंक कंट्री में या हम लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि ये कोच को रखना चाहिए, उन्होंने तो बनाया आपको। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो यू शुड फाइंड समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड वेट के मेरा रिजल्ट आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर देन द करियर इज वेरी शॉर्ट। प्लेयर्स करियर इज नॉट लाइक यू कैन कीप वेटिंग टिल 40 और 50 years। आपका करियर बहुत शॉर्ट होता है। और मैंने आई थिंक जस्ट टुक द डिसीजन बिकॉज आई वांटेड टू रियली गेट बैक इन माय शेप अगेन, एंड आई वांटेड टू सी अगर प्लेस चेंज में कुछ हो सकता है। सो आई वेंट टू बैंगलोर, आई आस्क्ड विमल सर आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आई वेंट टू बैंगलोर फॉर 3 years एंड आई बिकेम वर्ल्ड नंबर वन। आई won lot more super series. I got the world championship medal. I got the Asian Games medal. I played the finals of all England championships and lot more. Obviously एक झटका मुझे लगा बिकॉज इन द ओलंपिक्स 2016 में मेरी जो नी में था वो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया था, एंड इट आई कुडंट प्ले दैट ओलंपिक्स वेरी वेल। रियो में हुआ था। रियो में, यस। सो आई डिडंट नो कि ये जो नी भी जो टूटा था मेरा, जो अंदर का जो बोन ग्रोथ था, इट इट कुड हैव हैपेंड मे बी 1 month बिफोर और 1 month आफ्टर, बट वो उसी टाइम पे हुआ, एंड इट वाज रियली सैड। सो वो ओलंपिक्स का आई फील रियली सैड अबाउट, बट अदरवाइज द गेम पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। आई गेव so many good results, and but I took it as a positive thing. Even after the Olympics, I would say disaster only because I didn't play very well there. I came back and won the Malaysia Open, won another World Championship medal, and a lot of other championships. लेकिन वो tournament, obviously, I tried everything in the tournament, took cortisone injection, but still I was limping. I didn't know what happened. I went to Rio, 30 hours का journey करके इतना दूर गई मैं। एंड अगर मुझे पहले मालूम होता था कि ऐसा इंजरी हुआ है तो मैं इतनी दूर जाती भी नहीं। बट when I came back, I spoke to the doctor and he was like, surgery करना पड़ेगा, it's something very serious. Otherwise, you can take a call after 4 months. I was like, नहीं सर, इतना मतलब I don't want to wait for so much time. सर्जरी करते हैं, let us see how I get back. Obviously, motivation down हो गया था. I felt like, will I be able to come back again? There was a lot of crying happening. There was a lot of time रात में नींद नहीं आती थी, and lot of struggle. But then I think my parents, again, my coach, all of them were very positive. They were like, you will come back. Just start your training, start your physio, start your rehab. सो धीरे धीरे ये सब मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड विद इन नो टाइम आई वाज ऑन द कोर्ट अगेन, विद इन 2-3 months, एंड विद इन 4th-5th month आई वाज प्लेइंग द टूर्नामेंट अगेन। तो वो तो टाइम ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल का होता ही है, व्हेन यू कांट डू वेल वेयर यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू डू वेल। एंड उससे पहले ही मैंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, डिफीटिंग ऑल द टॉप प्लेयर्स। एंड बस ओलंपिक्स में वो मुझे झटका मिला वहाँ पे। तो आई थिंक इट वाज अ टफ टाइम, बट आई थिंक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट अगेन कि प्लेयर शुड जस्ट कीप फाइटिंग, वट एवर हैपन्स इज नॉट इन योर हैंड्स, you have to get back again and start fighting again. Yes. You got the surgery done, but Yeah. गोपी चंद नाराज ही रहे या आपसे कांटेक्ट में रहे? जहां आप जीत रहे थे मैसेजेस भेज रहे थे आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी? He was there, na? He was there in all the tournaments. We were talking also, and he was like, "अच्छा खेल रहे हो?" He could see my results coming. So, obviously as a coach, उन्होंने मुझे इतना फिर बताया नहीं कि क्या improvement करना है, क्या नहीं करना है. But he was very happy with my progress. He was saying, "You're moving well. You got the medal. You are improving. You became world number one." So whenever we met in the tournaments, there were these few words which we spoke. Obviously, nobody likes it, when you go away from the place you have been training from so many years. But I wanted to try something different, and but whenever we met in the tournament, it was just like a very good talk about the game, and he was very proud that I'm doing well. I took this decision, and obviously it was a very tough one, but he was like, I mean, just give your best, train hard. So yeah, these were the few words we spoke. Yeah. ऐसे कहा जा रहा था कि साइना नेहवाल ने गोपी चंद के साथ कोचिंग बंद किया क्योंकि वो पीवी सिंधु की तरफ ध्यान ज्यादा देने लगे थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो भी आई थिंक शी वाज कमिंग अप वेरी वेल, एंड व्हेन यू स्टार्ट कमिंग अप, उस टाइम पे आपको किसी चीज का डर नहीं होता है, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग fearlessly, and she was not in the circuit as much. So she started coming in the circuit, मतलब 2-3 महीने हुए होंगे उनको, and she was playing well. थोड़ा बहुत एक दो रिजल्ट्स अच्छे भी स्टार्ट हो गए थे आना, लेकिन मुझे उस टाइम पे मैं ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 2 थी,
एंड आई गॉट डाउन टू वर्ल्ड नंबर 9 एंड देन इट स्टार्टेड फीलिंग दैट कि जब आपके पास इतने सारे बच्चे हैं एंड देन इवन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन इंडिविजुअली, और फिर सर थक भी जा रहे थे सबको देखने में। एंड देन जब हमारा टाइम आता था टू डिस्कस अबाउट कैसा मैच के लिए और कैसे प्रिपेयर करना है, देन आई थिंक बोथ ऑफ अस वर लाइक लिटिल बिट स्टक कि टॉप प्लेयर को कैसे हराना है, या साइना का गेम इस प्लेयर के साथ कैसे सेट होगा, तो क्या ट्रेनिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी बोथ वर गेटिंग स्टक इन दैट area, and he was also not traveling to so many tournaments because he was busy with his academy, काफी उनको भी busy रहना पड़ता था। तो मुझे लगा था कि मुझे अपनी गेम के लिए अब क्योंकि मुझे सब जानने लगे हैं हाईएस्ट लेवल पे, दे आर टारगेटिंग मी बिकॉज आई एम विनिंग द टूर्नामेंट्स, सो व्हाट आई शुड डू फॉर माय गेम। ऑब्वियसली द पीपल विल टॉक बिकॉज शी इज ऑल्सो कमिंग अप, तो जब आप अपकमिंग रहते हैं आप फियरलेस लेते हैं, आप कुछ प्लेयर्स को हराते हैं, अननोन रहते हैं, तो इतने आपको जानते नहीं है, बट वंस यू आर एट द टॉप देन यू फील द फीलिंग ऑफ कि कहीं आपका गेम रुक गया है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ डिसीजन जस्ट टेकन बिकॉज मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं रुक ना जाऊं मेंटली, कहीं मेरा वो वापस जो आने का बिलीफ है वो कहीं रुक ना जाए। या इंटरेस्टिंगली आपका रिकॉर्ड सिंधु के साथ 4-1 है, जहां 4 मैचेस आप जीते हैं और वो एक आई ही थिंक जीते। I mean, that is not about this. Both of us played well for the country. Both of us should be celebrated because very rarely you get two, three people from same sport, that too in India, performing really well and getting medals non-stop. मतलब last 2010 से 2020 तक I think non-stop results आए हैं हमें. And I think it's all thanks to both of us who have really lifted the level of all other इवन मेन प्लेयर एज वेल, हम दोनों को देख के वो भी काफी हद तक अच्छा खेलना शुरू कर दिया था, श्रीकांत ने, प्रणॉय ने, दे आल्सो गॉट द बिलीव दैट वी कैन आल्सो विन। तो हम दोनों ने काफी साथ में इतने सारे टाइटल्स जीते हैं। आई थिंक इट इज वेरी वेरी बिग थिंग एट द इंटरनेशनल बैडमिंटन, एंड नाउ वे द सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट इन अवर कंट्री, सो दैट शोज के लड़कियां मतलब कितना अभी केपेबल है हमारी कंट्री में करने के लिए। एंड आई थिंक राइवलरी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट है। yes, we will not be able to talk to each other so much, we will not be having food with each other so much, हम बस हाई बाय ऑब्वियसली करेंगे, दैट इज विद एवरीवन, नॉट ओनली विद हर, बट सबके साथ ही हम बहुत ही कम बात करेंगे क्योंकि अपने आप पे फोकस करना पड़ता है, अपनी रिकवरी पे, अपने फूड पे, अपने मैच के विजुअलाइजेशन पे, अपने ट्रैवलिंग पे। तो तो उसमें किसी के साथ फ्रेंडशिप बनाने में टाइम रहता ही नहीं है सर। आप लोग की मतलब मैसेजेस या कभी बातचीत होती नो है? नो सर, इतना तो बस कोर्ट पे, बिकॉज 24/7 वी आर टुगेदर, 24/7 एवरी टूर्नामेंट वी आर टुगेदर। हाँ हाँ। सो वी डिडंट हैव टू रियली मैसेज क्यों करना है, फिर जब आप साथ में ही हो तो वहीं पे मिलके बात कर लेते हैं, एंड यू आर ये डिस्कसिंग एंड देन ये यू आर मैसेजेस कांग्रेचुलेटिंग ईच अदर। ये मैसेजेस से मुझे याद आ रहा है, साइना, अभी रिसेंटली आपने कहा कि परिणीति ने आपको अनफॉलो कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। नहीं, तो ये मुझे मालूम ही नहीं था। यस तो यस ये यस। क्या हुआ, मतलब आप उसको इतना सिखा, मतलब अगर आप मेरे लिस्ट में हो तो मैं तो आपको कभी अनफॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि यू आर इंडियाज हाँ प्राइड। हाँ हाँ लेट मी बी वेरी क्लियर, व्हाई शुड अ हाँ हाँ। परिणीति चोपड़ा अनफॉलो हाँ। साइना? नहीं, मुझे लगता है मे बी आई डेंट नो, अभी जब ये बात शुरू हुई तो मुझे लगा शायद मैंने भी काफी सोचा इस बारे में, तो मुझे लगता है शायद उनको लगा कि काम करूं और काम हो गया तो अपना मतलब ठीक है, नेक्स्ट मूवी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे ध्यान दे देंगे। यू आर एन एसेट इन लिस्ट। मतलब मैं ये सोच रही थी कि और क्या हो सकता है, मतलब फ्रेंड्स हम बन नहीं पाए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उतना टाइम था नहीं कि आई वी वर नॉट लाइक मीटिंग एवरी डे। उनको मैंने काफी हद तक स्किल के बारे में या कोर्ट पे कुछ सेशंस के सर्विस कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, वो सब चीजें बताई, और बाकी मेरे आई थिंक अकाउंट से मे बी शी जस्ट चेक कि मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे मेरा बिहेवियर है, उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। आई थिंक शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट एंड शी डिड एक्सट्रीमली वेल। मुझे भी लास्ट में मूवी में रोना आ गया और इतना अच्छी परफॉर्मेंस दिया, बट मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि ये सब चीजें हुई कब, बट लास्ट में व्हेन समवन सेज ये ऐसा हुआ है, तो मुझे लगा ऐसा क्या हुआ था, बिकॉज आई डोंट केयर फॉलो करो या अनफॉलो करो, उसमें इतना क्या होना चाहिए, ज्यादा कुछ झगड़ा तो हुआ नहीं किसी का कि अनफॉलो करके बैठोगे आप। अगर एक और जी सर। बायोपिक बनाई जाए जी। साइना पर, तो आप किस एक्ट्रेस को चाहेंगी आपका कैरेक्टर प्ले करने को?
मुझे लगता है श्रद्धा कपूर will be very good. She was the first choice. Unfortunately, She was the she first. was the first choice. Yes, she Had was you the met first her? choice. Yes, yes, sir. हम टच में भी रहते हैं and I've met her many times and such a sweet girl and actually she complete मतलब रेडी हो गई थी वो लास्ट में उनका कुछ आई थिंक हेल्थ ठीक नहीं था डेंगू हो बट गया था। अदरवाइज शी डेंगू हो गया था उनको तो शी ऑप्टेड आउट बट आई थिंक शी वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस और अदरवाइज दीपिका इज एनीवेज अ बैडमिंटन प्लेयर उनको खेलना आता है ग्रिप बहुत अच्छा पकड़ती हैं उनको पता है गेम के बारे में Was यस Palini serious in her training? वेरी सीरियस शी वॉज वेरी सीरियस लाइक शी वॉज सो डेडिकेटेड कि वो पूछ रही थी कि कैसे तुम मतलब सर्विस करते हो लेफ्ट बैक हैंड करते हो फोर हैंड करते हो शी लर्न सो मच अबाउट बैडमिंटन इनफैक्ट मुंबई में भी जाके वो थाने में श्रीकांत वार्ड सर है वहाँ पे उनके साथ रोज ट्रेनिंग करते थे एंड देन सर यूज टू सेंड मी अमोल गुप्ते सर यूज टू सेंड मी वीडियोज कि वो ऐसे मूव कर रही है ऐसा आज उन्होंने ट्रेनिंग किया तो आई वॉज लाइक वेरी इंप्रेस्ड कोई बैडमिंटन थोड़ा बहुत भी सीखने में एक साल लग जाता है बट शी ट्राइड एंड डिड इट इन 4 5 months एंड बहुत ही काफी अच्छी तरह से उन्होंने जो रोल है उनका निभाया है मूवी में बहुत मुझे अच्छा लगा मम्मी का रोल काफी अच्छा लगा एंड देन लास्ट में ऑब्वियसली रोना भी बहुत आया है लेकिन आई जस्ट फेल्ट समवेयर कि ये बात ज्यादा ऑब्वियसली चढ़ा दी अनफॉलो फॉलो की बट आई जस्ट फेल्ट कि मे बी शायद उनको लगा कि प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में काम किया और मे बी अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं सो आई जस्ट मे बी फील इट दैट वे मुझे तो लगा नहीं क्योंकि फ्रेंडशिप तो डेफिनेटली हुई नहीं थी फ्रेंडशिप के लिए आपको बहुत टाइम बिताना पड़ता है एक दूसरे के साथ उतना टाइम तो हमने फ्रैंकली नहीं बिताया क्योंकि बहुत जल्दी मूवी रिलीज करनी थी और श्रद्धा के साथ काफी मीटिंग्स हुई थी बट परिणीति के साथ उतनी मीटिंग्स हो नहीं पाई थी जी आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है और आपने उनके साथ यस खेला भी है। यस यस हैदराबाद में खेला जब है उन्होंने जी दिलवाले बन रही थी, आप गए थे वहां। कौन जीता वो जी मैच? मतलब ये बात तो मतलब हमने 2 3 पॉइंट खेले एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट ही लाइक्स बैडमिंटन एंड ही वाज प्लेइंग बैडमिंटन बिकॉज वहाँ पे जब भी फ्री टाइम मिला था शूट में ही वाज प्लेइंग अ लिटिल बिट एंड फिटनेस के लिए खेल रहे थे एंड आई जस्ट प्लेड फ्यू पॉइंट्स विद हिम मैच नहीं बट जस्ट प्लेड फ्यू पॉइंट्स एंड इट वाज नाइस टू सी दैट वो अटेम्प्ट अच्छा कर पा रहे थे एंड आई जस्ट सॉ हिम शूटिंग एज वेल कैसे शूट होता है कैसे करते हैं and then we went to his vanity van and we spoke for like almost मतलब उन्होंने खुद ही 1 2 hours दिए हमें अपना स्ट्रगल सुनाया कैसे वो लेवल पे वो पहुंचे and then we asked him also a lot more questions that how did you get so motivated जब आपके पास स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे नहीं थे but you still were very positive कि आप वो लेवल पे पहुंचना है ये सब तो he said I worked very hard and that story was very inspiring. He's very down to earth person. ही वॉज नेवर लाइक मुझे जल्दी शूट पे जाना है या मुझे जल्दी कुछ काम है ही वॉज वेरी मच देयर वेरी मच लाइक इन्वॉल्व इन द डिस्कशन ही गेव अस ऑल द टाइम रिक्वायर्ड एंड जब हम जा भी रहे थे तो ही एक्चुअली केम टिल द कार डोर एंड ही ओपन द डोर एंड ही वॉज लाइक ही Yeah, he's very प्लीज chivalrous. Yeah. very friendly, very nice to do that. And he was like, please come again for the shooting or anytime we'll meet again. And मतलब बहुत ही उनका जो एक नेचर है बहुत चार्मिंग है बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इतने बड़े स्टार है हमारे कंट्री के और अभी भी ग्राउंडेड है So, Saina, are you going to tell me that you have seen all the movies of Shah Rukh Khan? मे बी नॉट ऑल बट काफी हद तक देखी होंगी ऐसा तो नहीं है बट आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज मतलब वो टाइम पे डीडीएलजे दिल तो पागल है कुछ कुछ होता है ऑल वो वेरी बाजीगर such big hits is given and I'm a big fan of those movies yeah. So, which is your favorite? Number one. Number one will be obviously DDLJ and then Chak De is what I like a lot. And then he was very good in negative roles. So Bazigar was amazing. Oh, amazing movie, yeah. Our choices quite match because for me, Bazigar is one and two is Chak De. Yeah. So Bazigar, I mean, he's amazing in negative roles, but somehow DDLJ just clicked and he became that lover boy kind of this thing. But he can do both the roles very well. I mean, So, you met Kajol also, I believe. yes, one time at the airport. Not just hi bye, and she congratulated me for the results, but it was just for the flight. This thing. But we didn't catch up for long time. आपके और फेवरेट्स कौन है बॉलीवुड में? Um, और ज्यादा फेवरेट पे ध्यान नहीं दिया बिकॉज वंस आई स्टार्टेड माय करियर देन इट वाज जस्ट लाइक आई वाज वेरी बिजी विद द करियर दैट आई डिडंट हैव टाइम टू
make anyone as my favorite, but I've met Ranveer Singh quite a times, Deepika, and then Shraddha, and then what I found out about Ranveer is that he's very down to earth. He's also like amazing to meet in person. He opens up really well. Deepika is also very very nice person. She invited me for dinner, and she was talking about badminton the whole time. I think she loves matches and talking about all the games, all the sports. Amitabh sir also met me once or twice. He also invited me to his house. I mean, these You are went. great You people went. who have achieved so much. Did you Yes, go? yes, I went. Yeah, yeah, it was really nice. Had such lovely food. He also told about his story, and he was asking about my story a lot more, how I became a badminton player, because badminton was not such a big sport. He was asking me, how did you get interest in this? How did you become so, so strong and confident about achieving so much? So there was a lot of talk about the sport plus the movies, and these people are very grounded, and nice to see that they are still very much active into sports as well. They love sports, and they were talking about not only badminton but other sports as well. They keep a track about. Even Mary Kom, he was talking about her as well. She comes with me to all the major tournaments like the Commonwealth Games, Asian Games, and Yeah. Olympics. So I meet her over there. Then Vinesh Fogart, Geeta Fogart, all the Fogart sisters. We get to meet in all the big tournaments. So we were talking about that also, both different fields. So a little bit talk about their journey, and they spoke about how they felt about their journey. It was a nice conversation. Didn't have much time to really make anyone as favorite, after starting to play badminton in 99. Yeah. You That's why I think actually. I just maybe became a big fan of Shah Rukh, because I used to go to school, come back, then see his maybe songs and unke movies ज़्यादा हद तक टीवी पे देख रहे थे maybe. But after I moved to Hyderabad and once I started playing badminton professionally, so I 8 to 9 hours का जब आपका training ही हो रहा है, I mean, I went to theater only first time when I was 21 years old. उससे पहले थिएटर भी नहीं गई थी मैं, तो आई मीन इट वाज नॉट माय आफ्टर दैट द एजेंडा वाज ओनली टू प्ले वेल, टू ट्रेन वेल, टू गेट मेडल्स, and not very focused on that part to make anyone a favorite or anything like that. So you attribute to becoming a badminton player essentially to your mother. Yes, yes, 110%. Because it was no chance we could think about at that point of time 99 में कि कोई ओलंपिक चैंपियन या कोई वर्ल्ड चैंपियन या कोई वर्ल्ड नंबर वन बन सकता है. It was just impossible to think इतना दूर का. But she was thinking, and she that too in 1 month of coaching camp जो मैंने ट्रेनिंग करी थी, she could think and see me as a champion. I mean, it's very great of her. I used to live in Haryana. पापा का प्रमोशन हो गया, then we moved to Hyderabad in 98. सेलिब्रिटीज का एक और चैप्टर होता है लाइफ में आजकल, वो है ट्रोल्स. भी काफी लोगों ने कमेंट किया. ट्रोलिंग. Yes, yes, और yes. स्पेशली मुझे याद है पहली बार आपके डैड भी थोड़ा खफा हो गए थे जब उन्होंने कहा कि पद्म भूषण क्यों नहीं कंसीडर हो रहा है, पद्मश्री में लाए. तो क्या हुआ, क्योंकि वो सुशील कुमार की भी गैप 5 years थी और आपकी भी 5 years थी, लेकिन सुशील जी को मिला. तो हाँ. वो एक पहला इंस्टेंस था, तब आप काफी छोटे थे. यस, अब तो 10-11 साल हो गए सर. आई थिंक दैट टाइम में भी कुछ चला होगा दिमाग में, कुछ हुआ होगा. आई मीन, इट वाज नॉट लाइक कुछ पॉइंट सोच के ही वो टॉपिक उठाया होगा. अब तो याद भी नहीं आ रहा, 10-11 साल हो गए उस बात को. बट ट्रोलिंग, यस, इनिशियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू हर्ट मी, क्योंकि छोटी थी बहुत. उतना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना मैटर करता है या कुछ, बट ऑब्वियसली मैटर कर रहा था वो टाइम पे. बट स्लोली एज आई फेस्ड दी सिचुएशंस, आई वाज प्लेइंग, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एंड देन मुझे लगा कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है एक सेलिब्रिटी का. इट विल हैपन. आप जब तक अच्छा खेलेंगे सब आपके साथ ही रहेंगे, नहीं अच्छा खेलोगे कोई आपके साथ नहीं रहेगा. सो दीज ऑल थिंग्स आई थिंक आई शुड नॉट रियली केयर अबाउट, क्योंकि ये भी लोग हैं जो आपको ऑब्वियसली इनडायरेक्टली और पुश करने के लिए या और बेटर करने के लिए ही ट्रोलिंग करते हैं. देन दैट्स फाइन. मैंने कभी इनको सीरियसली लिया नहीं. बट येस, 1-2 years इनिशियली जब मैं बहुत 24-25 की रही होंगी, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज़ होती क्या है. बट देन व्हेन आई गॉट यूज्ड टू इट, एंड देन स्लोली, अब तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है. आई जस्ट फील
ऑल दिस सोशल मीडिया थिंग जो भी है टाइम पास के लिए है, और एंजॉय करो, और अच्छी चीज है, सब लोग टाइम पास करते हैं इस पे, एंड दे आर हैविंग फन, एंड इट्स बिकम वर्क फॉर मेनी पीपल एज वेल, तो दैट्स अ गुड साइन। बट आई टेक इट एज ए कि मतलब फन में लो, और जो जितना ट्रोलिंग हो रहा है या अच्छा बोल रहे हैं सबको एक ही तरह से लो, डोंट टेक इट। कोई अच्छा है तो डोंट थिंक कि बहुत ही अच्छा कुछ है, और कुछ गलत है तो जस्ट थिंक अबाउट कि कैसे बेटर करना है, एंड जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, क्योंकि फाइनली आपको ही प्रूव करना है, आपको हार्डवर्क करना है, एंड आपको अपने लिए खेलना है। यू वांट टू अचीव फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर कंट्री। तो जो ये चीजें होती रहती है, आई थिंक नॉट ओनली मी, एवरीवन फेसेस इट नाउ। सब बड़े प्लेयर्स को, सब बड़े मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही नहीं छोड़ते लोग, तो हम क्या है, हमको भी सुनना पड़ेगा, तो चलेगा। पीएम से मुझे याद आ रहा है, जी। आपने जब मोदी जी के लिए डिफेंस में ट्वीट किया था, जब वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, फार्मर्स आ गए थे, तो उस पर भी आपको काफी सुनना पड़ा था सोशल मीडिया पर। जी। नहीं, मैं जब भी बोल रही हूँ ना, थोड़े काफी पुरानी बातें हो गई। हाँ, मैंने आई आई पंजाब में जो इंसिडेंट हुआ था। हाँ, हाँ, मैं आई एम ए बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी सर। इनफैक्ट मैं पार्टी भी मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, एंड आई गो फॉर लॉट ऑफ देयर इवेंट्स, जो भी वुमेन एम्पावरमेंट का है, या लड़कियों को कहीं भी आगे बढ़ावा देना है, या उनके लिए कहीं भी अच्छा हो रहा है, तो आई एम ऑलवेज देयर। स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर। मुझे अच्छा लगता है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कंट्री को साथ में लेके चलना, और सबसे बेस्ट कंट्री बनाना दुनिया का एक थॉट है उनका। एंड I know it's not easy. Country is huge. We have a lot of population. It's not going to be easy, but he's trying his best. And I hope कि हम ऐसी दिशा पे चले कि जहाँ पे हम एक दूसरे को लेकर कंट्री के बारे में सोचें, और यही ट्राई करते रहे कि कैसे हर एक फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, या हर एक फील्ड में हम बेस्ट करके दिखाएं दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई रियली गेट अटैच टू। बाकी जो मैंने डिफेंस में, आई डोंट नो सर, मैंने उसके बारे में कुछ लिखा है, बिकॉज You said that, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे। anarchists attacked on PM, you said. मैं आई डोंट नो फार्मर्स रूल के बारे में कुछ ऐसा मैंने Hmm. कहा हो, तो मुझे याद नहीं आ रहा सर। इट वाज 2018 और 17 आई थिंक। Yeah, yeah. I like the way you handle the Neeraj Chopra thing and Javelin नहीं मालूम है तो क्या हुआ? I mean, इसमें कोई आप गुनाह तो आई नहीं? मीन उस टाइम पे ना, जब बचपन में हो आप, जब अगर नहीं देख रहे हो, सपोज नीरज केम इन 2000, मतलब 10 से 12 से अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं वो, तो अगर आपको उसके पहले, तो अगर जहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या आपको वो स्पोर्ट पता होगा क्या? यू विल नॉट, व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग इट, हाउ विल यू नो? यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, यू आर प्लेइंग खो खो, यू आर प्लेइंग कबड्डी, और स्विमिंग, आप टेबल टेनिस, आप सब स्पोर्ट खेल रहे हैं, आप टेनिस देख रहे हैं। तो जैवलिन का सडनली इतना क्रेज आया आफ्टर ही केम इन, एंड देन ऑब्वियसली कैसे खेला जाता है, थोड़ी ना हर एक स्कूल में खेला जाता है जैवलिन। आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज आई गो टू लॉट ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स, आई गो टू lot of talks in schools, colleges. तो जहाँ देखती हूँ, they have lot of squash courts, tennis courts, running track, athletics track. बट मैं अब जाके इंटरेस्ट देख रही हूँ, जब से नीरज ने गोल्ड जीतना शुरू किया है, या सिल्वर जीतना शुरू किया है। एशियन गेम्स गोल्ड भी है उनके पास, इतने सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं। I mean, it's just that once the sport is growing, exactly how it is played. I meant to set that how it is played, कैसे खेला जाता है, उनका पॉइंट सिस्टम कैसे होता है, कैसे वो चैंपियन बनते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू वॉच सम स्पोर्ट, यू विल नो एग्जैक्टली स्पोर्ट क्या है। मैं सिर्फ स्पोर्ट जानने को स्पोर्ट नहीं समझती, यू शुड नो एग्जैक्टली स्पोर्ट क्या है टू बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन। कैसे आप चैंपियन बनते हो, कैसे उसमें एनर्जी डाली जाती है, तो स्पोर्ट का सब कुछ मालूम होना चाहिए। मेनी पीपल विल से कि हाँ मुझे पता है टेनिस क्या है, पिकल बॉल क्या है, लेकिन कैसे खेला जाता है, कितने पॉइंट सिस्टम है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, हाउ टू बिकम ए चैंपियन। क्योंकि आजकल जब मैं देख भी रही हूँ, इतने सारे लोग पिकल बॉल पैडल तो खेल रहे हैं, दे थिंक दैट कि हम चैंपियंस बन जाएंगे, ये वो, बट 2-3 दिन के बाद सबको रिस्ट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, बिकॉज दे डोंट नो कि ट्रेनिंग करनी है स्पोर्ट खेलने के लिए। टू प्ले एनी स्पोर्ट यू नीड टू डू गुड ट्रेनिंग, गुड रिहैब, गुड कोचेज आर रिक्वायर्ड। यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि मैं एट द एज ऑफ 25-26 चैंपियन बन जाऊंगा कोई भी बड़े स्पोर्ट का। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू लर्न अबाउट द स्पोर्ट, अंडरस्टैंड द स्पोर्ट। दैट्स व्हाई जस्ट कीप टेलिंग इन ऑल माय मोटिवेशनल टॉक एज वेल कि अगर स्कूल्स में इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स आप
जो पीटी पीरियड है उसको 1 आवर कर दीजिए एंड शो अबाउट द फॉर्मर प्लेयर्स। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, वैसे ही स्क्रीन्स पे मे बी दे कैन शो अबाउट द फॉर्मर प्लेयर्स के स्पोर्ट कैसे खेला जाता है, हाउ डू यू फॉर्मर प्लेयर्स कैसे चैंपियन बने, कौन कौन चैंपियन बने। एंड दैट इज व्हेन आई थिंक दे विल आल्सो गेट इंटरेस्ट, जो भी फर्स्ट सेकंड क्लास में है, थर्ड में है, कि स्पोर्ट एक्चुअली क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ये कैसे खेला जाता है। सो एवरीथिंग अगर आप बचपन में सिखाए जाए तो तभी यू विल हैव मेनी मोर चैंपियंस। अदरवाइज हम ऐसे ही गिनते रह जाएंगे कि इस बार 5 मेडल आए, इस बार 6 मेडल आए, और वहीं पे आप देखिए चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देर कमिंग अप विद 1000, मतलब कितने सारे मेडल्स लेके आए, आते ही रहते हैं ओलंपिक्स में। दैट इज बिकॉज बचपन से स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, कौन सा कैसे खेला जाता है और कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है। बिकॉज एवरी स्पोर्ट इज अ जॉब। इट्स नॉट, अभी कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए स्पोर्ट नहीं रहा है। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलना चाहते हैं तो इट्स अ जॉब फॉर यू, फुल टाइम जॉब। अगर ठीक है आप टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, देन इट्स फॉर फिटनेस, देन प्ले इट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो इट शुड बी फॉर मोर देन 8 to 9 hours। अगर आप माइकल फेल्प्स का भी इंटरव्यू देखते हैं, ही सेड आई इवन यूज टू ट्रेन ऑन संडेज फॉर 8 to 9 hours, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट 8 Olympic gold medals। You also used to That train is on because, Sunday. yes, on Sundays. So obviously many parents will think, या players will think कि ये क्या है, it is torture for the players, it is torture for the kid. But अगर आपने torture नहीं सहा, then how will you be a champion? आप ठीक है, आप normal player बनना चाहते हैं, that is up to you. But अगर आप champion बनना चाहते हैं, then you will have to cross the limits. You will have to push your limits. एंड दैट इज द फैक्ट। नहीं तो मैं भी प्यार से बोल सकती हूँ बच्चों को, मैं भी प्यार से पेरेंट्स को बोल सकती हूँ, नहीं नहीं इतना चलेगा, इतने में बन जाएगा प्लेयर। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। जितने भी आप टैलेंटेड हो, जितने भी हार्ड वर्किंग हो, अनलेस यू पुश फॉर सो मेनी आवर्स, सो मेनी डेज, आपको अगर चैंपियन बनना है, कंसिस्टेंटली जीतना है, वर्ल्ड में चैंपियन बनना है, कंसिस्टेंटली बनना है, ओलंपिक गोल्ड्स लेके आने हैं, इट कैन नॉट हैपन विद जस्ट Time थ्री pass. फोर आवर्स का ट्रेनिंग कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज वेरी वेरी टफ। आपके पढ़ाई पर असर पड़ा था जब आप गेम में इतना घुस गई, बैडमिंटन में? Yes, I had to give up in 12th, because I was selected to play the Olympics in 2008, and I was 16 when I got to know that मुझको Olympics में chance मिल रहा है, and that is when I had to give it up, and I was like I will give all out to badminton and let us see what happens. Luckily, both my parents took the risk and they were like, just be focused and train hard. We are with you in this. And luckily, they never forced me for anything, and they were very positive, very supportive, and फ्रॉम द एज ऑफ 15-16 तो रिजल्ट्स आ ही रहे थे मुझे। बट 2008 ओलंपिक्स में मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला। मैनी पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग बैडमिंटन क्या है, मैनी पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग देयर इज अ प्लेयर हु इज कमिंग अप एंड डूइंग रियली वेल। सो दैट फर्स्ट ओलंपिक्स गेव मी वेरी बिग ब्रेक इन टर्म्स ऑफ बिलीविंग दैट आई कैन बीट द टॉप प्लेयर्स। एंड यस, एक बुरा लगता है कि आई हैड टू स्टॉप स्टडिंग बिकॉज अब मेरी स्टडीज, मेरा जॉब, सब कुछ मेरा गेम हो गया था। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक भारत पेट्रोलियम। दे came with the sponsorship when I was 2000, when I was only 13 in 2003, and 2008 में when I was 18 they gave me a job. So I was somewhere very thankful to them कि वो सही टाइम पे आए and I could buy shoes, rackets and play a lot of tournaments as well. काफी फंडिंग उन्होंने टूर्नामेंट्स के लिए की मेरी। देन योनेक्स ऑल्सो वॉज हेल्पिंग मी, जो स्पोर्ट्स में आते हैं योनेक्स की किट आती है, एंड देन फ्यू अदर स्पॉन्सर्स हु हेल्प मी आउट। तो आई थिंक मेरे करियर में मुझे जो चीज़ें मिली राइट टाइम पे, इट रियली हेल्प मी अचीव एट द हाईएस्ट लेवल। बट थोड़ा बहुत दुख रहता है कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि आई हैड टू फोकस अ लॉट मोर ऑन अ गेम विच वाज नॉट दैट पॉपुलर। लेकिन वो ओलंपिक्स के बाद एंड इन 2010 व्हेन आई वन 3 सुपर सीरीज बैक टू बैक, and suddenly I see myself everywhere on TV, everywhere Saina Nehwal, I mean, winning 3 Super Series, became world number 2. I mean, I never believed that. After that, Rajiv Khel Ratna, Padma Shri, big, big awards. All these were like a dream come true for me, and something unbelievable was happening with my life. I didn't have words to express. कभी ऐसा नहीं लगा That's कि all. बैडमिंटन से मैं स्टडीज कंप्लीट कर लूं? नहीं लगा, क्योंकि आई अचीव्ड सो मच दैट आई डोंट थिंक पर्सन हु विल जस्ट कम इन द स्पोर्ट विदाउट एनी एम्बिशन एंड विल अचीव सो मच विल बिकम वर्ल्ड नंबर 1। तो मुझे लगा नहीं कि ये जरूरत है, क्योंकि मेरे फैमिली में सब
पापा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मुझे लगा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बन के दिखाती हूँ, एंड अ बिग स्पोर्ट्स पर्सन, सो या आई एम प्राउड दैट आई एम समवन डिफरेंट. साइना, मुझे वो मैच बताओ जो आपके लिए बहुत टफेस्ट था और आपने बहुत पीछे से कम बैक किया, मतलब इट वाज ऑल ओवर एंड देन यू जस्ट वेंट ऑल आउट. 2010 Commonwealth Games in Delhi. That was a special one. In the finals, I was down match point 19 in the second set, and the Malaysian was match point up. The whole stadium went silent, and that medal mattered so much that अगर मैं वो जीती गोल्ड मेडल तो हमारी इंडिया की टैली की सेकंड पे आ जाती, एंड नहीं तो हम थर्ड पे रहते. तो ऐसा कुछ वो था वो टाइम पे, एंड द होल स्टेडियम वाज चीयरिंग फॉर मी, एंड दैट गोल्ड वाज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री. तो मुझे ऐसा लगा कि वो दिन फर्स्ट टाइम आई सॉ सो मेनी पीपल देयर चीयरिंग फॉर साइना, चीयरिंग. आई मीन ऑब्वियसली नर्वसनेस हुआ, टेंशन आई, क्योंकि इतने सारे लोग मैंने पहली बार देखे हैं. द क्राउड वाज अमेजिंग, दे वर रियली पुटिंग इन द एफर्ट्स कि मैं और अच्छा खेलूं. And that 2019th point just fell on the line, and it became 20 all. अगर वो लाइन अंपायर उसको आउट भी दे देता तो आई थिंक शी वुड हैव वन द मैच. वो लाइन पे गिरा, इट वाज ऑन मुझे द पॉइंट मिला. या. आई मीन उस टाइम पे रिव्यू सिस्टम भी नहीं था 2010 में. देयर वाज नो रिव्यू सिस्टम. रिव्यू सिस्टम केम इन 14 और 15 आई थिंक. तो आई मीन आई वाज शॉक्ड कि लाइन पे गिरा. सडनली आई वाज लाइक अंपायर कुछ भी दे सकता है, बट अंपायर ने राइट दिया. शी वाज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग के मैच हो गया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 20 ऑल. And then suddenly I won that game 20-20, and third game obviously I think उनका स्टेमिना थोड़ा डाउन हो गया था, तो I won that set 21-13. So So I mean that match was like still, I can feel that match. that is your Yes. sweetest victory, and which is your Yes. most bitter defeat? I mean, you were sure मैं ये मैच जीत रही हूँ, and then suddenly पासा पलट गया. That was in 2008 Olympics. I was very close to getting a medal in my first Olympics at the age of 18. In the quarterfinals, I was 11-3 up in the third set. 11-3 के बाद मैंने कोई मैच नहीं हारा है हिस्ट्री में. आई थिंक इट वाज द ओनली मैच विच आई हैव लॉस्ट. 11-3 के बाद सडनली आई बिकेम ब्लैंक. मुझे लगा कि मेडल आ ही रहा है, आई एम वेरी क्लोज टू गेटिंग अ मेडल. मेरी मम्मी का ड्रीम, मेरा ड्रीम, सबका ड्रीम, एंड दैट चाइल्डिश थिंकिंग थोड़ा सा आ गया, एंड सडनली आई वाज लाइक 11-3 के बाद एक पॉइंट नहीं आया मुझे, एंड देन शी वाज ऑन मैच पॉइंट, एंड देन आई गॉट 2 points, and she went on winning the match 21-13. And in fact, after the match, I went and asked her, what did you change? Because suddenly you were just giving up, and then you picked up again and you played really well. And she was like, my coach told me in the interval that pack your bags, you're going back home. And that was the strategy which he told her. And I was crying like anything. I was like, kitna mehnat, it comes once in 4 years. You're spending hours and hours of training. इतना आपको strict रहना पड़ता है सब चीज़ों के साथ, और ऐसे मैच मिस हो जाए. Everyone was expecting के कुछ इस बार मेडल आ जाएगा, and I defeated world number 4 before that in the previous round. I was playing really well. So that one loss actually it Still feels haunts you? really bad. Haunts you? Still haunts me after having the Olympic medal. Also, it haunts me because I could have got it in 2008 as well. But that tournament really helped me to push even more harder and made me believe that now I can win bigger tournaments. And next year I won the Super Series, which was the first Super Series, defeating all these Chinese players. And in 2010, again, I win 4-5 Super Series, becoming world number 2. So And yes, that tournament taught me a lot of things, but also it irritates me क्योंकि पहले भी medal आ and जाता. She was Indonesian, she got the bronze medal there. Yes. ओके. उसके बाद उसके साथ चांस मिला बदला लेने का? Yes, 1-2 times I defeated her after that. But then she stopped playing after that. After 1 year, she just retired. Yeah. एक और बात पूछनी थी आपको, साइना. हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग एट द मोमेंट? बिकॉज इन जुलाई 2025 you said that Yeah. you all are distancing yourselves, and then in 2025, 1 month later, I think August that was, and the previous Yeah. was in July, you said we are giving Yeah. it another shot. So we there were some misunderstandings. उतना मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ उसके बारे में, but we are trying again, and we are very happy. वो tournaments भी खेल कोच बन के जा रहा है,
और मैं भी काफ़ी अपने इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, बट वी वर लाइक यस, खेलने के पहले कुछ अलग मेंटालिटी होता था, खेलने के बाद थोड़ा डिफरेंट हुआ। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को समझने में कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग, अदरवाइज अभी सब ठीक है, इट इज ऑल गुड। या It's all या sorted now. यस यस यस। Any plans to start a family? नॉट येट, आई जस्ट स्टॉप प्लेइंग, सो थोड़ा सा टाइम आई वांट टू स्पेंड विद माय फैमिली। उन्होंने जो टाइम दिया, अपना इतने सारे साल दिए मेरे करियर के पीछे, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड एनीवेयर, दे हैव नॉट एंजॉयड एनीथिंग, तो पहले मैं अपना लाइफ एंजॉय कर लूँ, थोड़ा जो इतने साल का स्ट्रेस था वो सब थोड़ा कम कर लूँ, एंड लेट्स सी आफ्टर दैट। या मुझे आपके करियर में सिर्फ एक बात, करियर में नहीं बट आपकी लाइफ में एक बात से बहुत आपत्ति है, और वो है जब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि आपकी ग्रैनी चाहती थी कि लड़का हो और खफा थी, और या आपने जो आज प्राप्त किया है बीइंग अ गर्ल, डिड यू टेल योर ग्रैनी, डिड शी रियलाइज, डिड शी टेल यू सॉरी, डिड शी कम बैक टू यू? वो जमाने में तो होता था, आज भी होता है, आज भी फैमिलीज में है, कई फैमिलीज में है कि लड़का या मानते नहीं है, लेकिन क्या या सिचुएशन? आई थिंक वो जमाने में वही सब, वो जमाने में हरियाणा में स्पेशली ऐसा शायद होता हो, हरियाणा में या यूपी में थोड़ा बहुत ऐसा फीलिंग, मतलब मैं सुनने में आता था। लेकिन शी पास्ड अवे इन 99, शी वाज व्हेन वी मूव टू हैदराबाद, शी पास्ड अवे एट दैट टाइम। बट मुझे भी ये बात पापा के जरिए पता चली 2010 में, जब मैं पापा का भी इंटरव्यूज ले रहे थे। दैट इज व्हेन ही सेड के इनिशियली 1-2 मंथ्स में ऐसा कुछ बात हुई होगी। बट आई एम श्योर आज वो अगर होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि हरियाणा की बेटी इतने अच्छा कर रही हैं, सब बेटियां, देयर सो मेनी गर्ल्स हु आर विनिंग फ्रॉम हरियाणा नाउ, सो मेनी मेडल्स फ्रॉम हरियाणा इन रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन में भी इतनी लड़कियां अच्छा कर रही हैं। लेकिन आई थिंक वो टाइम पे थोड़ा बहुत होता होगा सर, बट मुझे तो आजकल तो ऐसा लगता नहीं है। एवरी वन इज सपोर्टिंग द गर्ल चाइल्ड, एंड एवरी गर्ल इज परफॉर्मिंग सो वेल फ्रॉम हरियाणा। तो उस टाइम पे ऐसी थोड़ी बहुत बातें हुई होंगी फैमिली में, तो एंड नाउ तो मुझे लगता है मेरे माय पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ मी, तो आई थिंक वो तो और भी क्लाउड 9 पे होते हैं, आई एम श्योर We all are proud of you, यस। but did she come and tell you? Did you remember some moments with her then, or were the relations strained between you and her? Not really, not really. They were in UP and we moved to Haryana for my father's job, and then we moved to Hyderabad. तो हमेशा मूव पे रहे, तो इतना टाइम स्पेंड करने को मिला नहीं। It was all my father's I think discussion with her little bit, which I got to know through the paper as well. And when I asked him, and he was like, ऐसा initially 1-2 months में थोड़ा बहुत talk हुआ था, बट मुझे इसके बारे में इतना उस टाइम पे नहीं पता था। बट व्हेन आई ग्रू ओल्डर आई वाज लाइक, होता होगा, क्योंकि सुनने में आता है कि वहाँ पे ऐसा थोड़ा बहुत उस टाइम पे लोग बात करते थे कि लड़के हो तो बेटर है। बट मुझे तो लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट करे, अच्छे एक दूसरे को कंपटीशन दे, एंड बोथ ऑफ देम डू वेल। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांट स्पोर्ट्स में। तो बाकी तो हर एक फील्ड में हम बेस्ट है ही, वी आर बेस्ट इन एवरी फील्ड। आपने या मेल प्लेयर्स के सामने भी खेला है अगेंस्ट देम कुछ मैचेस? खेला है, मतलब दे हैव हेल्प मी इन माय ट्रेनिंग, दे हेल्प मी इन माय ट्रेनिंग, या दे हैव हेल्प मी अ लॉट, एंड मेल कोचेस भी रहे हैं, मेरे बचपन से मेल कोचेस रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड मेकिंग मी द प्लेयर आई एम टुडे। हैव ऑफ यू? कोर्स काफी टॉप मेल प्लेयर्स खेलना भी नहीं चाहते होंगे मेरे साथ, क्योंकि शायद विमेन प्लेयर का थोड़ा सा लेवल डाउन होता है मेन प्लेयर के साथ, बट स्टिल दे प्लेड, दे वर लाइक नहीं, साइना इज डूइंग वेल, वी शुड हेल्प हर आउट। सो दैट इज द स्पिरिट आई वांट फ्रॉम ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए एंड मेक श्योर जो जो अच्छे सही रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। एंड आई एम श्योर सब एक दूसरे की जर्नी में हेल्पफुल तो होते ही हैं, सबका साथ जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मेरी हेल्प करी, एंड You दे already आर आल्सो वेरी answered. प्राउड। या You already answered my next question because it is clear that you have defeated many male players when playing against them. Uh, डिफीट मतलब आई थिंक विदाउट स्मैश, बिकॉज ऑब्वियसली मेंस विल स्मैश लिटिल हार्डर। तो hmm. रैली गेम में मैंने काफी हद तक प्लेयर्स को, जो अंडर 19 प्लेयर्स को, उनको हराया है। लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल ऑब्वियसली इट इज वेरी टफ, बट स्टिल आई गिव देम टफ कंपटीशन, तो वो उसका अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जी। साइना, आपका स्मैश आपका स्मैश ही है जो आपको अग्रेसिव प्लेयर कहा जाता है, या आप जो बोल रहे थे यस। तो बहुत ड्रामा होता है, वो जो स्मैश है जी जी। वो कहाँ से आया? वो इट वाज योर ओन और वाज इट आफ्टर यू जॉइंड
Coach Gopichand? No, it was the first smash which I hit. It was the first smash in the summer camp. जो पहला स्ट्रोक मैंने खेला, जो मेरा पहला स्ट्रोक समर कैंप में मैंने अपने कोच को दिखाया, वो था स्मैश. एंड दैट वाज ओनली आफ्टर वाचिंग माय पेरेंट्स प्ले. यू नो, माय फादर यूज्ड टू हिट गुड स्मैशेस. My mother had a very good wrist, you know, she used to play very good strokes. But जो शॉट मैंने खेला पहला, तो आई थिंक पापा से आया था वो मुझे कि मैंने स्मैश ही मारा. एंड इट वाज अ ग्रेट, आई मीन इवन द कोच वाज वेरी सरप्राइज्ड कि समर कैंप में कोई स्मैश मार सकता है. दैट मीन्स ही और शी इज लिटिल टैलेंटेड, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे टॉस या ड्रॉप से ही स्टार्ट करते हैं. बट आई वाज हिटिंग अ स्मैश, दैट मीन्स आई एम गुड पावरफुल प्लेयर. एंड ही वाज लाइक कि साइना अच्छे से ट्रेन करेगी तो वी आर वेरी श्योर दैट शी कैन डू वेल, यू नो. चलो, अभी तो आप नहीं खेल रहे हैं, या खेलेंगे तो कब जी खेलेंगे? आप अपनी एकेडमी डेफिनेटली स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा है. जी. अपने वीकनेसेस बता सकते हैं, कौन से थे जो शायद ओपोनेंट्स ने नहीं देखे? वीकनेस ओवरऑल ज्यादा नहीं था मेरे गेम में. आई फील आई वाज अ वेरी गुड रिट्रीवर. आई हैज टू डू लॉट ऑफ गुड रैलीज. डिफेंस और अटैक बोथ वर वेरी गुड. ऐसे आई थिंक इजी पॉइंट्स मुझसे लेना कभी किसी से हुआ नहीं है. एवरीवन इज गिवन मी टफ फाइट, बिग लॉन्ग रैलीज, एंड दैट्स व्हेन, यू नो, मेकिंग मी टायर्ड वाज द ओनली ऑप्शन. I think that was something which was little tough for the opponents, but most of them had very, very good strokes like Tai Tzu-Ying, like Wang Yihan, and later on Carolina Marin also was very, very fast player. So, you know, all of them realized that we have to defeat Saina either with very good shots or make her tired and then win it. The long So I rally. think few of them maybe under long rallies, yeah. Yeah. So I think these two Chinese players were Tai Tzu-Ying and Wang Yihan had amazingly beautiful shots. So I think they used to trouble most of the players like that. And Carolina with her speed. So these three players were very Carolina Marin. कभी कभी स्मैश में हो जाता है कि वी गेट वेरी एक्साइटेड कि अभी मुझे मारना ही है, थोड़ा हुआ, और द प्लेयर्स हु वांट टू स्मैश, लाइक आई हैव प्लेड टेबल टेनिस एंड आई कुडंट रेजिस्ट, तो मैं जल्दी मार दे, और कई बार मेरे पॉइंट्स चले जाते थे. आपके थक हुए? जाते थे ना. यू गेट टायर्ड विद दैट. आपके हुए थे ऐसा? So initially I used to hit a lot. Yes. Initially I used to hit a lot without realizing that it makes you tired a lot more. So engage the opponent in rallies, engage them, make them tired, and then hit it when you find a good advantage. So I have to, as a badminton player, you have to work on your strength. Plus you have to work on all the areas again and again, like stamina, speed, strokes. Everything has to be 100% to defeat a good player. एंड आई न्यू समवेयर के सिर्फ स्मैश से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अच्छा स्टेमिना भी होना चाहिए. सो जितने भी मैं रैलीज करूंगी, वो रैलीज का एंड जो होना चाहिए वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ही थक जाऊं. आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रैली लाइक दैट वेयर द अपोनेंट शुड आल्सो गेट टायर्ड, एंड मेरा भी जो स्मैश है या स्ट्रोक है अच्छे से गिरे और आई गेट अ पॉइंट आउट ऑफ इट. तो इसलिए इनिशियली तो बहुत मैंने मारा स्मैशेस एंड आई रियलाइज्ड कि इट इज मेकिंग मी टायर्ड, अननेसेसरी. So then slowly I restricted that and made the opponent move a lot more and then hit it when I got the chance. Temptation आती है कि मार के खत्म कर दें. This complete player has not taken the name of cricket, and I wish to conclude this interview by asking you that आपने एक ही बार शायद नाम लिया, if I'm not wrong. I stand corrected. आपने एक बार नाम लिया क्रिकेट का. आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? क्रिकेट उतना देखा नहीं सर. जैसे कि मैंने बताया 99 से जब खेलना शुरू किया था मैंने, दैट इज व्हेन बॉलीवुड भी थोड़ा कम हो गया था एंड दूसरे स्पोर्ट्स में भी ध्यान कम हो गया था. So obviously Bollywood and cricket are the most loved thing in our country, most loved sport, or Bollywood is also most loved. तो कहीं ना कहीं से उनकी न्यूज़ तो आ ही जाती है, कौन कैसा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, नहीं कर रहा है. एंड बीसीसीआई इज ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट सो वेल. उनका जो लीग्स होते हैं, उनके जो मैचेस होते हैं, आई मीन टॉप प्लेयर्स का जो सैलरी सिस्टम होता है, everything is very well done. I think that's why the sport is only growing and growing. So I can only say positive things about it. And और कुछ ज्यादा मतलब सोचा नहीं, क्योंकि इतना देखने का टाइम मिलता नहीं था. अपने ही करियर में इतना बिजी थे, अपने ट्रैवलिंग में इतना बिजी थे, और अभी भी अपने जो इवेंट्स चलते रहते हैं वो भी काफी नॉन स्टॉप, बैक टू बैक आई कीप ट्रैवलिंग. तो उतना ट्रैक नहीं रख पाते हैं जी. आपको ये गिला नहीं है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपके आई मीन
But I did something where something was unbelievable, and I think people started recognizing me for that. People know Saina Nehwal as badminton player, so I feel proud of that कि मुझे जितना मिल सका अपने स्पोर्ट के लिए, आई थिंक बहुत ज्यादा ही मिला है, क्योंकि लोग भी काफी हद तक हर एक जगह पे मुझे पहचानते हैं, या जो एंडोर्समेंट्स है, ये जो पैसा है, आई थिंक आई कैन लिव माई लाइफ हैप्पीली। कुछ भी ऐसा मुझे कमी नहीं लगी कि ऑब्वियसली व्हेन यू शो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एंड कंसिस्टेंट विंस, तो लोग आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे। वंस इन अ वाइल रिजल्ट्स जब आते हैं तब ऑब्वियसली आपको लोग नहीं पहचानेंगे अपने कंट्री में। एक चीज ये है कि यू विल हैव टू कंसिस्टेंटली शो रिजल्ट्स टू बी देयर ऑलवेज। बट You, क्रिकेट में दैट वाज द थिंग, दे कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो लोग बारी बारी उसको देख रहे हैं, तो जान रहे हैं। तो ऐसे ही अगर दूसरे स्पोर्ट में हम कंसिस्टेंटली जीतेंगे, रिजल्ट्स लेके आएंगे, तो वी कैन ऑल्सो become a popular sport, and I think that's what happened in last 10 years. you're Badminton absolutely बहुत grow right. हुआ है. Yes. You're absolutely right. Who are your favorite cricketers, men and women both? Mm, And the women have done us a lot favorite. proud by winning the World Cup. So, who are your favorite cricketers? Is it Virat? Is it I Sachin? mean, Is I it? don't have any favorites. I mean, I don't. I just love Roger Federer. I just love Roger Federer and Sharapova. I love watching tennis. They are my favorites. But I would like to congratulate the women team for winning the World Cup. I mean, it was amazing last year, Cricket World Cup. They Fascinating. did what a fantastic job. Fantastic job. But my favorite sports person is Roger Federer. I just love him. Are you in touch with him? Yeah. No, no, no. Not just as a fan. Just as a fan. Yeah. Not exchanging messages or talking to him on the. No, no, no. No, no. I just love his game. Very beautiful player, very beautiful strokes. I mean, very calm, very relaxed. Such I, a world class player he I was. extend this by just one more question. And I repeat Yeah. here before asking you that question, you are India's pride. What if Prime Minister Narendra Modi asks you to contest an election for BJP? I mean, it will be it's a great compliment. It's a great thing if he'll ask me that. But maybe I just love being around my sport now for some more years. I would like to give back to my game. I would like to motivate a lot of youngsters to do well in sport. I would like to see our country getting more medals in different sports. So I'm very happy as of now to motivate the youngsters and help them with badminton. But in future, yes, why not? If my mood changes, I really want to get into that. Why not? You should try all different things. But it will be a huge thing coming from him, and that itself is a great thing for me. So Yeah. maybe 2029, no, but 2034, you may be open to it. Let me Let us see. also Let ask us see. you just one small thing, which is about your academy. And have you started it? Have you rounded off some? Not started yet, because I think coaching is another difficult job. It's not easy to train so many kids. You have spent so many years working on yourself, put in a lot of efforts, and that kind of pressure to be there non-stop winning for so many years. But coaching is another stressful job again, to give back Expectations will be and very high, gain Saina, with you. very high from a coach. Plus you'll have to make champions, because everyone wants to make champions when they come into coaching. You cannot just be there as Saina, standing behind some players. You want to enter into coaching when you know that you want to produce champions. You want to be there with them full time, which is another thing. Like, playing से भी और difficult है वो. You have to be with the players 110% every time and thinking about everyone. So it's another difficult thing. I will think about it. But as of now, I'm really happy being a mentor. I'm sure you will dish out a lot of good students. I'm also sure that Prime Minister Narendra Modi will ask you at some point, considering Thank you. your popularity, to contest an election for him. And I'm also sure that you have a lot of time now to catch up on all the Shah Rukh Khan movies that you have. Thank you. Thank you so much. Wonderful talking to you. Thank you, Saina. Thank you so much. It Thank has you. been a very, very great moment. I've spent some very good time with you on this chat and looking forward to talking to you again. Thank you. Thank you so much.